Hi guys, how are you? I hope you're all doing good. Welcome to another video. तो आज हम एक चीज करने वाले हैं. I've taken a newspaper article from the Hindu on the of the 14th of October. ठीक है. So what we're going to do, I have picked up one article from here and I'm going to read this article word by word and we're going to discuss how do you actually read a newspaper article and what are the things that you need to focus on from that article. So what most of the times that we do that we miss out the basics that are there in the newspaper. ठीक है, जो चीजें मेंशन होती है हमें लगता है कि यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट until and unless our basics are clear we do not actually understand that article. ठीक है, so I'll be reading this article one by one. पहले I'll be completely finishing the article and बीच बीच में I'll keep telling you कि क्या क्या चीजें important हैं और फिर उस important चीजों को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, so let's begin. चलो, तो this article is about testing governance, national security and ecological responsibility reinforce each other. ठीक है. Now, fresh impetus for the Sualkot hydroelectric project planned as a 1.8 gigawatt scheme on the Chenab coincides with India's unilateral suspension of the Indus Water Treaty after the Pahalgam terror attack, giving it a geopolitical symbolism that risks overshadowing questions relating to the environmental impact. Now here, our focus should be on Swalkot hydroelectric project की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमको कुछ नहीं पता है. And that is how you should be reading. You should not be reading with a thought process कि मुझे तो ये पता है, मुझे तो सब पता है. No, you should always be reading and learning something with a mindset कि मुझे ये नहीं पता है and I have to learn it. ठीक है. So, anyways, तो ये स्वालकोट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसके लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. दिस इज ऑन द चेनाब रिवर. ठीक है, अब चेनाब रिवर आ गया है, सो यू शुड बी नोइंग कि चेनाब रिवर इज इन न्यूज एंड यू शुड बी नोइंग कि उसका क्या फ्लो है, क्या कौन सी स्टेट से कौन सी कंट्री से वो पास करती है. ठीक है, ऑल्सो यू शुड बी नोइंग कि चेनाब रिवर पे और कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने आर्टिकल में बाद में बता रखा है. सो विल डिस्कस ऑल दैट लेटर ऑन. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फोकस. ठीक है. Now, Indus Water Treaty has been in the news, for a very long time because since the Pahalgam terror attack has happened. So, of course, it becomes inevitable for you to know about the Indus Water Treaty. ठीक है, after the Pahalgam terror attack, giving it term, ठीक है, ये हो गया. Moving on. The Union Ministries of Power and Home Affairs have repeatedly stressed its strategic value to press for exemptions from impact and carrying capacity studies, but other factors cannot be wished away with a magic wand. The Chenab already hosts the Dulhasti, Baglihar, and Salal projects in a bumper-to-bumper hydropower corridor. Ignoring cumulative impact here means underestimating compounded sediment loads and slope instability. The gravity dam proposed at Swalkot, despite being described as a run-off river, will form a reservoir of over 50,000 crore liters, rendering it functionally closer to a storage dam. Its estimated cost has risen by 9,000 crore due to inflation and prolonged administrative uncertainty. ठीक है, अब इतना देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो उन्होंने हमें बताया कि चेनाब रिवर पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं. दुलहस्ती, बागलिहार एंड सलाल प्रोजेक्ट्स उन्होंने हमें बता दिया. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर. ठीक है, अब इन अ बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर. अब ये बम्पर टू बम्पर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, जब तक हमें हम जो पढ़ रहे हैं जब तक हमें उसको समझ में नहीं आएगा ना, there's no point of reading the newspaper article, and this also improves your vocabulary because this is the kind of vocabulary and the words that you can actually use while writing your answers. ठीक है, so bumper to bumper हाइड्रो पावर कॉरिडोर मतलब कि जो आपस में इतने पास पास जैसे गाड़ियां खड़ी होती है बम्पर टू बम्पर लग के. बम्पर क्या होता है? गाड़ियों का बम्पर होता है. तो जब ट्रैफिक जैम पे एकदम बिल्कुल चिपक के गाड़ियां खड़ी होती हैं उसको बोलते हैं बम्पर टू बम्पर. तो ऐसे ही ये 3-4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक साथ लगे हुए हैं बिल्कुल चिपके हुए. ठीक है, तो उसकी बात करें. 3 इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिए. एक स्वालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मेन थीम है यहाँ का वो हो गया. तो 4 प्रोजेक्ट उन्होंने हमें चेनाब रिवर पे ही बता दिए. ठीक है, नाउ इसके बाद इन्होंने हमें बात की कि इससे क्या होगा, दैट वी आर इग्नोरिंग
द कंपाउंडेड सेडिमेंट लोड। इतने सारे डैम्स अगर आप एक ही रिवर पे इतने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस कर दोगे तो सेडिमेंट लोड कितना हो जाएगा एंड स्लोप इंस्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दे आर टेलिंग अस अबाउट द ग्रेविटी डैम प्रपोज्ड एट स्वालकोट। मतलब ये जो स्वालकोट पे बनने वाला है ये एक्चुअली क्या है, एक ग्रेविटी डैम है। तो पहले तो मुझे ये सोचना है कि ग्रेविटी डैम क्या होता है, मुझे तो ये नहीं पता है। और उससे पहले भी अगर आपको यही नहीं पता है कि डैम क्या होता है तो पहले आपको वो सोचना है कि डैम क्या होता है, फिर आपको सोचना है कि ग्रेविटी डैम क्या होता है। अच्छा, अगर ग्रेविटी डैम ये होता है तो क्या और तरीके के भी डैम्स होते हैं? इफ देयर आर अदर काइंड्स ऑफ डैम्स, व्हाट आर दोज अदर काइंड्स ऑफ डैम्स? ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एंड द लाइन ऑफ थिंकिंग एंड हाउ डज इट अलाइन विद योर यूपीएससी सिलेबस। आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का आपके पास टॉपिक है यूपीएससी में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम्स नहीं आते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जो भी इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, क्या ये उसका पार्ट नहीं है? ऑफ कोर्स है। एंड दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। ठीक है, एंड यू नेवर नो इन योर मेंस आल्सो, वो पूछ लेगा आपसे व्हाट इज अ ग्रेविटी डैम। ठीक है, वो दे देगा आपको 4 ऑप्शन, वहां पे आपको पता ही नहीं है जबकि न्यूज़पेपर में था, बट आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू गो अबाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, ग्रेविटी डैम उन्होंने हमें बताया कि ये स्वालकोट जो है, अब वो पूछ लेगा स्वालकोट कौन से टाइप का डैम है। ऑफ कोर्स ग्रेविटी डैम है। ठीक है, नाउ डिस्पाइट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ रन ऑफ रिवर। ठीक है, अब ये रन ऑफ रिवर क्या होता है? अब वो बोल रहे डिस्पाइट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ रन ऑफ रिवर इट विल फॉर्म अ reservoir of over 50,000 crore liters, rendering it functionally closer to a storage dam। अब देखो दो टाइप के डैम्स उन्होंने आपको यहीं पे बता दिए, स्टोरेज डैम, ग्रेविटी डैम एंड रन ऑफ रिवर डैम। इनफैक्ट 3 टाइप के डैम बता दिए उन्होंने आपको। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू सर्च, यू अगर आपको नहीं पता यू हैव टू नो कि ये डैम्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या डैम्स होते हैं ये। ठीक है, नाउ कॉस्ट उसकी बढ़ गई है। द एनएचपीसी लिमिटेड्स रीसेंट रिकॉर्ड in comparable Himalayan projects shows many schedule slippages and cost overruns. Finally, rehabilitation cost account for। अब देखो ये अनदर चीज आपको बता रहे हैं, कहीं पे भी आपको डैम बनाना है तो वहां के लोगों को आपको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके में कॉस्ट लगेगी। Whereas 1500 families will be have to be resettled and 847 hectares of forest will be diverted. So what it's trying to tell you कि एक डैम बनाने के लिए आपको एक एक 360 डिग्री व्यू से सोचना पड़ेगा। वहां पे डैम बनाओगे, आप वहां का फॉरेस्ट क्लियर करोगे। ठीक है, अब वहां का रिवर को ऑब्स्ट्रक्ट करोगे। अगर वहां पे 4-5 डैम बम्पर टू बम्पर बने हुए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका वहां के लोगों पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसका वहां के इकोलॉजी, वहां की फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या हमको वहां के फॉरेस्ट कट डाउन करने पड़ेंगे? क्या वहाँ की नेचुरल इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी? उसकी वजह से क्या कॉस्ट राइज होगी, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? सो दैट्स हाउ यू थिंक इन अ broad way, in a 360 degree way, and that's how you have to write your answers. Again, in strategic terms, the project's timing signals India's intent to operationalize its entitlement over Western रिवर्स फॉलोइंग द IWT's सस्पेंशन। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट का टाइमिंग है वो देखो कितना अच्छा है। ठीक है, कि हमने अभी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखा है। ठीक है, उस टाइम पे हम ये ड्रैम्स को बना रहे हैं। ठीक है, सो उसका टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है आगे देखो वो बताएंगे आपको टाइमिंग के बारे में। कीपिंग द ट्रीटी इन अबेंस also removed procedural constraints allowing projects such as Sualkot and Volar Barrage to go ahead. ठीक है, however, this approach risks diminishing India's credibility as a riparian state that abides by treaties, particularly in a fora where it advocates rule-based transboundary governance. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये उस टाइम पे हम उसको ऑपरेशनलाइज करने का सोच रहे हैं जिस टाइम पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी हुई है। दैट मीन्स हम पाकिस्तान का कोई भी राइट ऑन दैट वाटर हम लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे इस टाइम पे। ठीक है, दैट मीन्स उनका जो एक प्रोसीजर था इंडस वाटर ट्रीटी में, जो प्रोसीजर था उसको लेके कि इफ यू आर बिल्डिंग एनी डैम्स और बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ओवर दीज रिवर्स, Pakistan also has a say in it. But currently we have suspended that treaty. So, we are trying to take a one-sided advantage of it. ठीक है, सजाज स्वालकोट एंड वुलार बराज। अब यहाँ पे इन्होंने एक बराज की बात कर दी, तो भाई बराज और डैम में क्या डिफरेंस है? दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन एंड यू हैव टू क्वेश्चन। ठीक है,
ये हो गया। हाउएवर अब देखो हम ये कर तो रहे हैं बट डज इट नॉट रिस्क आवर क्रेडिबिलिटी एज अ रिपेरियन स्टेट? पहली बात तो रिपेरियन स्टेट क्या होता है? रिपेरियन स्टेट मतलब जो भी उस वाटर बॉडी से लगी हुई स्टेट्स होती हैं या फिर कंट्रीज होती हैं, ठीक है? सो काइंड ऑफ लेट्स से नेबरिंग कंट्रीज ऑफ वाटर बॉडीज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है प्लीज़ उसको 5 सेकंड लगा के गूगल कर लिया करो, ठीक है? यू नेवर नो व्हाट बेसिक क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है? सो अगेन बराज और डैम में क्या डिफरेंस है? सो डज इट नॉट risk our credibility? And India has always been an advocate of recognizing the sovereign rights of the countries and recognizing the rule based transboundary governance. तो हमारे क्या ये principles को ये risk नहीं करता है कि does it not challenge our the principles that we advocate for? तो एक foreign policy का context भी इसमें आ जाता है, ठीक है? Now Pakistan has already challenged the suspension's legality vis-a-vis the 1960 framework. Should India proceed with multiple large projects without cooperative mechanisms, future negotiations may potentially invite third-party scrutiny. ठीक है, इससे क्या होगा कि third party scrutiny में भी international organization, maybe the UN or the US or the other countries might interfere. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंडिया की इमेज ऑल्सो इन अ डिप्लोमेटिक मैनर इन द इंटरनेशनल लेवल पे एक डिमिनिश होती है, ठीक है? Now, in any case, strategic assertion should come with ecological restraint and would require regional studies and protocols to manage sediments for all future projects, regardless of treaty status. India should also institutionalize data transparency through regional or multilateral platforms, converting hydrological monitoring from a security risk into a confidence building measure, which would also align strategic autonomy with stewardship. Sualkot's legacy will ultimately depend on whether India realizes that national security and ecological responsibility reinforce each other. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक डैम के ऊपर आपको कितने सारे व्यू पॉइंट्स दे दिए, डू यू इवन रियलाइज? उन्होंने एक डैम के ऊपर आपको पहली बात तो डैम की 3-4 वैरायटी बता दी. It told you gravity dam, it told you runoff river dam, it told you storage dam, it told you I mean, it didn't tell you what it is, but it has mentioned a barrage. ठीक है, so these are the kind of infrastructure projects जो कि उसने आपको एक आर्टिकल में मेंशन कर दिया. उसके बाद डैम के लिए उन्होंने आपको बता दिया कि भाई देखो इसका इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, वहाँ के ट्रीज, वहाँ की सेडिमेंटेशन, वहाँ का स्लिपेज, ये सब आपने देखना है. वहाँ के एक ह्यूमन एस्पेक्ट होता है, वहाँ के लोगों को जो आपको वो करना है, रिहैबिलिटेट करना है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट. अगेन कॉस्ट का एक एस्पेक्ट उन्होंने आपको बता दिया, ठीक है. उसके बाद उन्होंने बता दिया कि बम्पर टू बम्पर अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो उसका क्या हार्म है, ठीक है. उसके बाद उन्होंने आपको बता दिया कि एक फॉरेन पॉलिसी का भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो डिमिनिश होती है यहाँ पे, ठीक है, ऑन एन इंटरनेशनल फोरम एंड इट माइट इनवाइट अ थर्ड पार्टी स्क्रूटनी, ठीक है. ऑल्सो इट हैज टोल्ड यू व्हाट एल्स, yeah, that India advocates for a rule-based transboundary governance. It has also told you that what a riparian state is. Okay? So much information you are getting from just one article. So that's how you have to go about reading an article. Please उसको Google किया करो उस टाइम पे. ठीक है? Now यहाँ पे कुछ चीजें जो mention की थी that I have noted down and that I will be sharing with you. ठीक है, पहले तो जब उसने डैम्स का मेंशन किया है तो आप लोग थोड़ा सा उसको डीप डाउन सर्च करके देखा करो. अब देखो ये चिनाब रिवर है यहाँ पे, ठीक है, उस पे आपको दिख रहा है बागलिहार डैम, उस पे आपको दिख रहा है सलाल डैम, उस पे आपको दिख रहा है एक दुलहस्ती डैम भी है वहां पे, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये है दुलहस्ती डैम, ठीक है. उसके बाद एक यहाँ पे उसने जो मेन बात की वो है सुआलकोट डैम. अब देखो उसने आपको बताया था, अब उसने आपको काइंड ऑफ डैम्स बताए थे, ठीक है, तो आपको सर्च करना है कि कौन से टाइप का डैम है. उसने आपको बताया सुआलकोट एक रन ऑफ रिवर डैम है, ठीक है. अब दुलहस्ती जो है वो है एक कॉन्क्रीट या फिर ग्रेविटी डैम. बागलिहार जो है एक रन ऑफ रिवर डैम है और सलाल डैम जो है वो एक रॉकफेल डैम है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डैम्स, ये देख लेते हैं. अब देखो पहले तो रन ऑफ रिवर डैम और स्टोरेज डैम क्या होता है. जब एक रिवर का ऑलरेडी फ्लो यहाँ से हो रहा होता है, यू कैन सी दिस कलर,
जब एक रिवर का ऑलरेडी फ्लो यहाँ से हो रहा होता है, सो क्या हो गया ये? सो यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एन अनदर रिजर्वायर। ठीक है, आप उसी फ्लो को हार्नेस करके यहाँ पे आपने एक टरबाइन लगा दी, वो उस रिवर के फ्लो की वजह से ही घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, सो नो रिजर्वायर इज क्रिएटेड इन दिस काइंड ऑफ अ डैम। अब वो वहां पे क्या बोल रहा था कि ये रन ऑफ रिवर डैम तो है, बट अगेन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ रिजर्वायर विच विल बी अकेन टू अ स्टोरेज डैम। ठीक है, ये होता है स्टोरेज डैम था, जहाँ पे आप एक रिवर्स रिजर्वायर बनाते हो, एक पानी को एक आर्टिफिशियल तरीके से स्टोर करते हो, उसका फिर फ्लो कंट्रोल करते हो, उसके गेट्स ओपन करते हो, फ्लो कंट्रोल करते हो और फिर टरबाइन को घुमाते हो और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रन ऑफ रिवर डैम एंड अ स्टोरेज डैम। जबकि वो वहां पे बोल रहे थे कि ये काइंड ऑफ स्टोरेज डैम ही बन जाएगा, जो कि स्वालको डैम है। ठीक है, उसके बाद उसने बात की थी ग्रेविटी डैम की। ग्रेविटी डैम क्या होता है, जहाँ पे आपका ये एक काइंड ऑफ कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना होता है और ये जो अपना स्ट्रक्चर है ये इतना हैवी होता है कि ये अपने लोड से इट स्टोर्स द वाटर। ये वाटर को यहाँ पे कंटेन जो करता है, ये अपने अपने लोड से, अपने भार से ये वाटर को यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, तो ये कंक्रीट का बना होता है। सो स्टोर्स वाटर यूजिंग इट्स ओन हेवी वेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंक्रीट का बना होता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आर्च डैम। आर्च डैम क्या होता है, अगेन ये भी कंक्रीट का बना होता है। ये यहाँ पे सपोज हिल्स हैं, ठीक है, दोनों साइड पे। ठीक है, अब ये एक आर्च टाइप का डैम होता है। ठीक है, अब ये डैम भी क्या करता है, कंक्रीट का ही बना है, सेम वो है, बट ये क्या करता है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है ना, ये जो वाटर का लोड है इसको साइड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि सारा लोड इसके ऊपर ना हो। ठीक है, सो इट डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ वाटर टुवर्ड्स द साइड्स। ठीक है, इम्बैंकमेंट या फिर अर्थ डैम क्या होता है, इम्बैंक अर्थ डैम मतलब अर्थ के मटेरियल से, जैसे रॉक, सैंड, इन चीजों से जो कि डैम बना होता है। ठीक है, इसमें अर्थफिल डैम होता है जो बेसिकली सॉइल वगैरह से बना होता है, और एक होता है रॉकफिल डैम जो कि पत्थरों से बना होता है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ रॉक। सेम कॉन्सेप्ट है डैम का कि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, बट वो जो हमने पहले देखे ये कंक्रीट से बने होते हैं, और ये वाला जो होता है ये अर्दन मटेरियल से बना होता है। ठीक है, मेड ऑफ सॉइल रॉक्स। ठीक है, अब ये सॉइल और रॉक से बना है, सो ऑब्वियसली ये परमिएबल होगा, इसमें से पानी पास हो सकता है, और ये बहुत इजीली टूट सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि बराज की वहां पे मेंशन था और एक डैम का मेंशन था। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बराज एंड अ डैम। देखो, प्राइमरी पर्पस बराज का क्या होता है कि वाटर को डाइवर्ट करना एंड रेगुलेट द फ्लो फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन पर्पस। जबकि डैम के मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक रिजर्वायर क्रिएट करना, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक फ्लड कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ अ डैम इज नॉट जस्ट टू obstruct the flow but to obstruct the flow with a further purpose of creating generating electricity, of preventing floods or these kind of things. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में एक सीरीज ऑफ गेट्स लगा दिए जाते हैं ऑन द रिवर एंड with its entire length usually equipped with gates. So mainly बराज में सिर्फ आपको सिंपली गेट्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रॉडर कंस्ट्रक्शन होता है, एक ज्यादा कंस्ट्रक्शन होता है, लार्जर हायर बैरियर एंड स्पिलवेज नियर द टॉप टू रिलीज एक्सेस वाटर। वाटर स्टोरेज यहाँ पे बराज के केस में लो होता है, प्राइमरी बाय द हाइट ऑफ द गेट्स। यहाँ पे हाई स्टोरेज होता है और डीप रिजर्वायर्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पे रिवर फ्लो क्या होता है, स्टेबलाइजेस वाटर लेवल बाय कंट्रोलिंग द फ्लो थ्रू गेट्स। गेट्स को खोल दिया, बंद कर दिया, वहां से ऐसे करके रिवर के फ्लो को आप जो वाटर लेवल है रेगुलेट करते हो। ठीक है, वेराज हियर क्या होता है, ब्लॉक्स एंड इम्पाउंड्स वाटर क्रिएटिंग अ रेजर्वायर। यहाँ पे देखो बराज में कोई भी रेजर्वायर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, typical location across flat slow moving rivers across a river or water course to form a deep reservoir. So this is a basic difference between dam and barrage. ठीक है, डैम एंड बराज में वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा यार, बट यू शुड बी नोइंग, कहीं पे बराज आ गया तो आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है वो। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ वे दैट यू सपोज टू बी स्टडिंग एन आर्टिकल। ठीक है, इसके अलावा देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स दैट यू शुड बी सर्चिंग ऑन योर ओन। रिपेरियन स्टेट मैंने बता दिया था, इन दिस वाटर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सर्च करके रखना, इसका पूरा वट एवर इज देयर। नाउ दीज आर द थिंग्स दैट यू जनरली ऑल्सो फाइंड इन योर
लेट्स से न्यूज़ जो भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो, वो सब भी ऐसे ही मैगजीन बनाते हैं. सो यू इफ यू ऑलरेडी रीड दिस एंड यू रीड इट इन अ काइंड ऑफ वे, सो यू नो टाइम उतना ही लगेगा. आप यहाँ ये पढ़ोगे, उसके बाद जाके करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ोगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें दी होंगी. ठीक है. So this is how you read a newspaper article. I've covered this till here. I hope you liked it and I hope you understood something and I hope you are going to read your further articles in the similar manner. अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. जैसे let me just show you. I think आज के ही इसी न्यूज़पेपर में था. हाँ देखो, अब यहाँ पे जैसे आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल, ठीक है. अब उसने बताया आफ्टर को ये जो भी, ठीक है, जो भी आर्टिकल है दैट्स नॉट रेलिवेंट, बट व्हाट इज रेलिवेंट हियर कि उसने बताया कि सदर्न रिज में एज अ रिजर्व फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपको डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है. अब जहाँ पे भी रिजर्व फॉरेस्ट, अब आपको पता ही नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है. ठीक है. तो थोड़ा सा जाओ उसको सर्च करो कि रिजर्व फॉरेस्ट होता क्या है. ठीक है. कौन डिक्लेयर करता है. ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी बनाता है. ठीक है. सो यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू. ठीक है. सो उससे आप सर्च करो कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है. उसको स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. और रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है वो होता है मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट. ठीक है. एंड इफ यू सी, ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है. इफ आई विल जस्ट शो यू, ये देखो 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन. With reference to India's forest type, consider the following statement. Reserve forests are the most restricted type of forest. In reserve forest, all activities are prohibited unless specifically permitted. Protected forests are open for all. तो अगर आप रिजर्व फॉरेस्ट पढ़ोगे, डेफिनेटली आप पढ़ लोगे, वहीं पे आपको दिख जाएगा कि और रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा कौन से फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है. सो सी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है. अब वो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डैम पे भी पूछ लेगा कि ग्रेविटी डैम क्या होता है. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन आप पे और चीज़ों पे पूछ लेगा. सो यू नीड टू फोकस कि वो चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, प्लीज़ एक बार जाके उसको गूगल कर लो. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गूगल करने में. और एक काम और कर लो, अब एआई आ गया है तो उससे रिलेटेड अगर कोई यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया उसको सर्च कर लो. ठीक है. सो प्लीज़ मेक यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी फॉर योर बेनिफिट. ऑन दैट नोट, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, बट ओके, टेकिंग योर लीव. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.